right. So can someone say the full form of HTML? Hypertext markup language. Hello. Okay, very good. All right. So let me ask someone, let's say Disha, what you can make in HTML? Can you repeat? Yes. So the question is in front of your screen. What you can make in HTML? Maybe web pages. Like, Perfect. Perfect. Web pages. And the collection of web pages, can I say it is called website? yes. Right? Okay. So can you just tell me what are the advantages of HTML? Of course, one is called you can make website Yeah. और एडवांटेज क्या है? सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेबसाइट नाउ? अगर मैंने वेबसाइट बना लिया तो उसका फायदा क्या है? Mm. कैन यू जस्ट थिंक Like ऑफ? if हाँ, like if you want to if you want to open a business or anything, you want to show your what do you call that? शो योर वर्क. Yeah, show your work or something like that. You can make a website and you can show all your work, your like what is the importance and all. So you can show it through website. So my question goes, Disha, that I can show it to the MS Word also. Word में लिख के भी मैं दिखा सकता हूँ, नोटपैड में लिख के भी दिखा सकता हूँ. तो वेबसाइट में दिखाने का क्या एडवांटेज? It will be like everyone can see it. What do you mean by everyone? Correct है. Everyone in world, can I say? Yeah. Right. Everyone in world who is online can view web page design in HTML. Good. Okay. Yes. और क्या फायदा है? और क्या फायदा है वेबसाइट में? और मैंने कुछ किया तो वो सामने वाले को, आप ऐसा सोचो ना, मैंने वर्ड में आपको दिखाया और HTML में दिखाया. व्हाट कैन बी अ डिफरेंस? In HTML, you can like you can access the things like if you want to buy something or like you can click on it and like purchase it. But on Correct. HTML, you cannot. No, on the Word you cannot do that. Right. In HTML you can. Yes. राइट. सो अभी यू नो कि HTML की वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते. वो काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी HTML में नहीं है. डिजाइन है, बट शॉपिंग कार्ट का जो भी वेबसाइट्स आप देखते हो, इट्स नॉट डिजाइन इन HTML, इट इज डिजाइन इन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो दैट आई विल से दैट इट इज अ डिसएडवांटेज. ऑनलाइन शॉपिंग और login kind of functionality cannot do in HTML. ये नहीं कर सकते आप, ध्यान में रखना. सो कैन आई से क्या कर सकते हैं? वन कैन डू म्यूजिक, वन कैन ऐड म्यूजिक, image, color on page. Okay. Easy to learn HTML. Everyone, it's very easy to learn HTML. No special software required. Only browser. जो हर एक
इसमें रहता ही है सिस्टम में, एंड टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, जो भी हर एक सिस्टम में रहता ही है, everyone. So please write it down quickly, the advantages of HTML. Is there any way हम लोग ये टाइम भी सेव कर सकते हैं? आप क्लिक कर लो बाद में. Is that fine for today's lecture? Yes, no, maybe. सर डिसएडवांटेज में एक ही आएगा? नहीं, अभी वो करना है, so मैं एकदम अटक गया एडवांटेज करके. So let me write it down. So then sir, we'll Disadvantage. take the screenshot later once you हाँ. write the disadvantage. I got that. चलो ऐसा ही करते हैं. ठीक है. So let's continue with the disadvantage. Can someone say what are the disadvantages? No compiler. Calculations. C++ में एरर करते हैं तो कंपाइलर हेल्प करता है. HTML में आप एरर करते हो तो कोई हेल्प नहीं करता. ऐसा का ऐसा आउटपुट आ जाता है एरर वाला. And then output wrong आया, so you realize कि something is wrong. So let's alter, let's change. So it is not true programming language. It's not true programming language. फिर ये जो ऑनलाइन है ना, तो उसके साथ में या उसके पहले मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इंटरैक्टिव वेबसाइट वन कैन नॉट मेक. वन कैन नॉट मेक. इंटरैक्टिव वेबसाइट वन कैन नॉट मेक. Okay. Then हम लोग कुछ भी सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. So I want everyone कि ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं. बेसिकली एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, बट एक प्रैक्टिस होता है. ओके, व्हेन आई राइट, व्हेन आई रीड. सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी को फाइनल करके चलेंगे. ऑफ कोर्स आप बुक टीपीएस से रीड करेंगे, बट ये लिखेंगे. और टीपीएस में दे हैव गिवन, मैं देख रहा हूँ कि 10 एडवांटेजेस. वी डोंट वांट टू राइट 10 एडवांटेजेस. 6 is more than enough. So you choose whichever 6 you like, right? You choose whichever disadvantage you like. But of course आप देखोगे तो कुछ strong आपको पता चल जाएगा ये है, तो वो होना चाहिए. And something जो आपको नहीं समझा, I invite you कि मुझे next lecture में पूछो. Okay, everyone. So now you can take a picture of that. एक मिनट. And then I am expecting कि आप बुक में बाद में लिख दोगे. Those students who have immediate tuitions वो नहीं लिखेगी, बाकी सारे लिख देंगे आज ही लेक्चर के पीछे, so that it is clear. You can also note down जब भी आप ऐसा लिखते हो कि advantage and disadvantage of HTML, refer page number so and so from TPS book. This is called your work. So the day you are preparing for your final exam, आपको पता है यहाँ से ये refer किया, यहाँ से ये refer किया. All right. Sir, few answers in the TPS book if they are in a complex language, especially for C++. Then for those definitions or answers, if we are not understanding the language in the textbook, then we can definitely write the ones which we have written in the notebook, na? बिल्कुल 100 and वो उसी में से लिखनी चाहिए, नोटबुक में से, because that is the very easiest and the filtered one.
I am using a book called E. Bala Guru Swami for C++ for my college students for 100 marks exam. अभी उसमें जो क्लास का डेफिनेशन था, उसमें जो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन था, प्राइवेट पब्लिक, विच आई हैव गिवन टू यू, तो वो उसमें से ही लिखो. इनफैक्ट यू नो दैट्स गुड. ये HTML कैसा है? HTML यू कैन रिफर 100% फ्रॉम TPS, कोई प्रॉब्लम नहीं है. C++ का कुछ भी रिफर नहीं करोगे तो भी चलेगा. कुछ रिफर करना है, जैसे वापिस व्हाट इज OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑल. प्रोग्रामिंग का जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फ्रेंड फंक्शन, वो वगैरह, उसमें जो 10-10 पॉइंट दिए ना, वो एक ही पॉइंट घुमा घुमा के दे हैव गिवन. सो वो डिस्कार्ड कर देना कुछ कुछ पॉइंट्स, है ना. सो आई वॉन्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर कमिंग फॉर द लेक्चर ना. जब भी मेरा टॉपिक हो जाए क्लास एंड ऑब्जेक्ट, प्राइवेट पब्लिक, तो घर पे एक बार रीड किया, सो दैट नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ सको सर दिस पेज का दैट पॉइंट ये हम लोग स्किप कर रहे हैं, या मैं ये स्किप कर रही हूँ, मेरे को ये नहीं समझा, मैं उसकी जगह ये लिख रही हूँ. सो जस्ट कम्युनिकेट विथ मी. ओके, या all right. So it's an advantage and disadvantage. Let's move further. So now, HTML is completely made of tags. HTML is made of tags. Now tags किसको बोलते हैं? तो मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, काफी टाइम पूछा हुआ है. गिव द स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज. कैसा होता है HTML का पेज? जैसे अगर आपको कोई पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले क्लास, उसके बाद उसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट, देन वेरिएबल्स एंड मेथड्स या फंक्शंस, एंड देन मेन. तो वैसा HTML देखो मैं कैसा लिखता हूं. व्हेन आई से HTML, मैंने ऐसा लिखा था, देखो, ओपन क्लोज एंड देन इन बिटवीन HTML, फिर वापिस ओपन क्लोज इन बिटवीन HTML, यानी ये क्लोजिंग टैग है. एवरी टैग इज इन अ पेयर. ओपनिंग HTML, this is closing HTML. But few tags does not have a closing tag. उसको open ही रहता है. और few tags have a self closing. What do you mean by self closing? इसको self closing बोलते हैं. ओके, तो ये BR को ओपन नहीं होता, मतलब क्लोजिंग अलग से नहीं होता, उसी में लिख देते हैं हम लोग. सो वी विल कम टू दैट पॉइंट. तो माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज HTML ओपन, HTML क्लोज. दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. इन दैट आई विल हैव अ हेड ओपन, आई विल हैव अ हेड क्लोज. सो व्हेन आई एम टीचिंग टू अ स्ट्रक्चर ऑफ HTML, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि यू कंपेयर विद द ह्यूमन बॉडी. सो ये ह्यूमन बॉडी है HTML, एंड एवरी ह्यूमन बॉडी हैज अ वन हेड ओनली. यू कैन नॉट हैव मोर देन वन हेड, राइट? एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकता. इफ यू हैव हर्ड सर्टेन माइथोलॉजिकल स्टोरीज, तो रावण को 10 माथा था भाई, उसको छोड़ के किसी को नहीं. एंड ऑफ कोर्स फ्यू मेडिकल एक्सेप्शंस, है ना. हमने कोई मूवी में भी देखा है 2 हेड है, ऐसे कुछ रियलिटी में भी कुछ केसेस आते हैं. दैट इज आवर एक्सेप्शंस. सो हेड ओपन, हेड क्लोज. इन दैट आई गॉट टाइटल ओपन एंड आई गॉट टाइटल क्लोज. ये ऐसा स्पेस देना कोई रूल नहीं है, बट रीडेबिलिटी अच्छा रहता है. रीडेबिलिटी, इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी. I want to show you that कि ये किधर आने वाला है आउटपुट. दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज. ओके, वो हम देखते हैं कहाँ आने वाला है. सो ये मेरा हेड कंप्लीट हो गया. जैसे हेड कंप्लीट हुआ, देयर इज अ बॉडी कम्स. सो बॉडी टैग ओपन,
body tag close. And in this I can write again anything. Everyone. Now, So for closing of head tag, that slash won't come. yes, it has to come. I'm sorry, it's my mistake. So here closing. In fact, मैंने जब भी बनाया तभी देना चाहिए था. So that's always good way of writing the programming. Good. So now everyone, structure of the HTML page हुआ. Steps: write a program in Notepad, save as something.html. तो मैंने उसको नाम दिया test.html. Open browser and open file test.html to view. Output. Anyone, any doubt? Write a program in Notepad. This is my first step. Second step is save as something.html. Anything name, whatever you want to give. 3, open the browser and open the file something.html to view the output. So हमारा step 1 हो चुका है. Can you see that? Steps हो चुका है. Now next is save the program. Save the program in your folder, in suitable folder only. So I will open my 12th computer science ka folder. I'll give some file name. The most important is the extension .html. You can also give your file name as .htm, everyone. Just अगर YY में पूछा तो it is allowed. Okay. And I'll say save my work. Next, second step हो गया. Open the browser and open the test.html. Which browser you are using? Can someone shout? आप लोग कौन सा browser use कर रहे हो? Chrome. Okay. So Chrome में कैसे ओपन करना है देखते हैं. Chrome में हमारा ऑलरेडी मीटिंग चल रहा है. I hope you can see that. Right. तो उसके बाजू में ये प्लस करके आया. मैंने एक और टैब ओपन किया. यहाँ से मैंने कुछ न्यू टैब देखा. फाइल ओपन का कोई ऑप्शन दिखा रहा है नहीं. कैन एनीवन टेल मी कैसे फाइल ओपन करने का? आई नो द शॉर्टकट, बट यहाँ पे किसी को पता है फाइल ओपन करने के लिए? Someone has done in 11th. Okay. So if you don't know, what you can do is go to that folder in which you have saved your program. We have saved in lockdown folder के अंदर 12th computer science, and I'll find a test.html. Can you see that? And when I do double click, it will open in the Internet Explorer, Chrome. Now this depends upon your computer to computer. In case in your computer the default browser is Mozilla Firefox, तो उसका आइकन दिखाएगा. If it is Internet Explorer, उसका आइकन दिखाएगा. And if it is there as a Chrome, तो Chrome दिखाएगा. So when you double click, वो अपने आप exactly वही ब्राउजर में ओपन हो जाएगा. Can you see that this is a body of HTML? Title किधर आया? Can you see here? This is the title of the page.
and that is correct. So one way to open file is go to the destination folder and double click. Let me explain the other way. Now to write since I have opened the browser, I have one option called Control O. Control O, everyone. Control O is opening a document. Which file you want to open? So I said again E drive. In that lockdown, 12th computer science. Can you see test? Right? So this is the body of HTML page. Any doubt, any of you? So these are the steps. I think you should know that. So I want everyone you to write it down this program. ये program तो कम से कम आज लिखना है, which is the first program of your HTML. Now this is the body of HTML is the minimum one. मैं उसको कितना भी डेकोरेट कर सकता हूँ, like h1 open and h1 close. और उसी के नीचे मैं नॉर्मल लिखता हूं जो लिखा हुआ था, एंड देन इसी को मैं रिफ्रेश करूं यहां से तो देखो दिस इज कॉल्ड h1 एंड दिस इज हमारा नॉर्मल था वो. कैन यू सी दैट? सो h1 इज अ हेडिंग वन, थोड़ा बड़ा दिखेगा. सो एज अ फर्स्ट प्रोग्राम मुझे कुछ नहीं करना है. दिस इज द बॉडी, मतलब मेरा टाइटल क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर. सो प्लीज गिव अ टाइटल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड राइट इट डाउन इन योर बुक. And you can ask any doubt if you have right now. Copied everyone?
Yes, sir. All right. Okay. So now, which tag do you know up till now? Can someone shout except Vruti? Can someone shout except Vruti? Which are the tags we learn? HTML, head, Mhm. title, and body. HTML, head, title, and body. Perfect. So tag is clear now, everyone. HTML is nothing but the huge collection of tags. हर टैग का कोई एक स्पेशलिटी है. So let me introduce a one tag called H1, head 1. I got H1 close. Okay. And then I got H1 से H6 तक है टोटल. H2. H1 से H4. So let's see कैसा दिखता है. सेव करना है हमेशा आपकी फाइल को एंड देन रिफ्रेश करना है. Everyone, can you see that? The difference between H1, 2, 3, 4 and so on. The lowest one is H6. Now what is the difference between the H4 या H4 की जगह मैंने फॉन्ट लिखा और फॉन्ट का साइज मैंने 12, 13, 14 दे दिया. What is the difference? What do you think? एक फॉन्ट करके टैग है ऋतुजा. एक फॉन्ट करके टैग है जिसमें मैं फॉन्ट का साइज कुछ भी दे सकता हूं 10, 12, 13, 14. और H3 या H1 में क्या डिफरेंस होगा? एनी आइडिया कि ये H1 क्या साइज का फॉन्ट प्रिंट कर रहा है? Sir, 12, yeah, So it's 30. not they have decided. Simple. वो लोग ने कुछ फिक्स किया हुआ है कि इसको H1 बोलेंगे. That's it. बट यू सेड सर मुझे इससे थोड़ा छोटा चाहिए या थोड़ा बड़ा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? H1 से बड़ा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सर फॉन्ट में जाके फॉन्ट चेंज. जाके चेंज करना है. फॉन्ट की नहीं, फॉन्ट टैग ही है भाई. देयर इज अ वन टैग कॉल फॉन्ट. उसके अंदर साइज दे देंगे. राइट. अच्छा. और अगर छोटा करना है तो क्या करोगे? यू सेड H2. लेकिन आई हाँ. सेड नहीं, मुझे H1 से छोटा और H2 से बड़ा. दैट मीन्स वापिस कस्टमाइज, देन यूज फॉन्ट. क्लियर है ये? Yes, sir. Good. So everyone, H,
H से जो भी स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हेडर, H1 से लेके H6. All right. So that is called my tags, everyone. Header tags, H1 से H6. Now, I want to explain what do you mean by attributes. Attributes बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, everyone. Now ये HTML का लैंग्वेज है ना, it is not English language. If you can see that background color में BG color COLOR है, COLOUR नहीं है. ये आपको ध्यान रखना है. What is BG color? It's a background color. Right? So let's understand background color. Excuse me. Now, sorry, there are 16 colors available. With a name called red, green, yellow, blue, etc. Or 256 colors available with style like double quotes open, hashtag, RR, GG, BB, red, green, blue. RR means 2 digit. Let's say 89 or 09 or 90, any combination. Between 002 FF in hexadecimal pattern. Do you understand hexadecimal numbers? Girls, you must have done in computer science 1 or 2. 2 में कहीं किया रहेगा आप लोगों ने. किसी को याद है hexadecimal pattern? हाँ सर. है ना. 0 to 9 होता है. 9 के बाद क्या होता है?
A. Then A, B, C, D, E, F, and then F. That's it. F yeah, is last. So if I'll say A, matlab 10. 10. Yeah, B मतलब 11 and so on everyone. तो मैं एट्रीब्यूट्स को यूज कैसे करूं? व्हाट इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट? फर्स्ट ऑफ ऑल बीजी कलर. व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स वैल्यू? रेड. आई सेड मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अलग शेड चाहिए. देन गो अहेड विद दिस स्टाइल. So let me take an example first of all. In my existing code only. Where is body? Here are. Attributes are always inside the tag. Attributes are always inside the tag. So how will I use that? तो बॉडी के अंदर लिखता हूं मैं जो आपका एग्जैक्टली एट्रीब्यूट का नाम है बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी कलर का नाम देना है वो. दैट्स इट. बॉडी क्लोज तो किया ही है, नीचे हो गया. लेट मी रन. ये दो दो ओपन है, उसमें से एक को क्लोज कर देता हूं सो नो कंफ्यूजन. देखो looks good, attractive. And then someone said that I don't like the color. Yeah, that's absolutely fine. You can try and experiment yellow, red, green, whatever. Save your work, come here and refresh. I hope this is simple and clear. Yes, sir. Yeah. Now can someone help me? How will I do that hexadecimal का कोड? क्या लिखूं? बताओ मुझे. This is I am removing. एक मिनट. हाँ, रिमूव करने से पहले मुझे एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए सो दैट एक एक लाइन आप लोग भी बाद में कॉपी करेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया एक. नाउ टेल मी क्या लिखूं मैं? I want hexadecimal code. कुछ भी बोलो, anything बोलो, just try. So let me ask someone specific student so that आप लोग को confusion नहीं, मैं बोलूँ तू बोले. So I'll ask to Disha. Yes, sir. बोलो. In the hexadecimal pattern you want, so like Yeah, yes. Hashtag. hash. So what you have written your RR या RR की जगह पे कोई वैल्यू बोलो. value. Where 1. 1 that is called becomes for RR. अभी GG that is for green color. कोई दो वैल्यू बोलो वापिस. 2, You can, 3. yeah, you can tell anything between 0 to F. F, yeah. अभी कोई And हाँ अल्फाबेट भी यूज करना. अभी बी के लिए बी के लिए ब्लू के लिए A and B. या ए बी. परफेक्ट. AB. या ठीक है, गुड. सो लेट मी चेक. ये हमारा डिस्कवरी बनेगा. यू नो कौन सा कलर बनेगा ना आपको पता है ना मुझे पता है. लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक. ये देखो थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, इफ यू कैन सी. एंड कोई बोलता है नहीं सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ. सो लेट मी ट्राई बाय चेंजिंग. आपने ब्लू कलर का हाईएस्ट वैल्यू रखा है. कैन यू सी दैट?
मैं अभी वो ब्लू कलर का हाईएस्ट वैल्यू बीच में दे दूं तो क्या होने वाला है, कोई मुझे बताएगा क्या? विच शेड Green. का कलर आएगा? या ग्रीन का आना चाहिए कुछ समथिंग। देखो लाइट ग्रीन आ गया थोड़ा। एंड व्हेन यू से रेड एंड ग्रीन मिक्स क्या होता है? आई डोंट नो भाई, आई एम नॉट गुड एट कलर्स। रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट्स सी। ये देखो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। एंड रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? मिस्ट्री। दिस बिकम ग्रे कलर। So there are literally 256 shades. ऑफ कोर्स। आप देखो कॉम्बिनेशंस कितना बनता है, 0 to 255। What happens if I'll say F F F F F F? हाईएस्ट, सब कुछ हाईएस्ट लिखा दो। Maybe black. लेट्स सी। एंड फिर हाईएस्ट 0 लिख के भी देखता हूँ। लोएस्ट मतलब वाइट हो गया हाईएस्ट। एंड व्हाट यू आर सेइंग कुड बी दिस वन। ब्लैक। तीनों तीन हाईएस्ट इज वाइट, तीनों तीन लोएस्ट इज ब्लैक। ए बी बहुत मजा आता है, कलर आर वंडरफुल। एंड देन आई से यस दिस इज समथिंग डिफरेंट। ए बी 1 to ए बी मतलब रेड एंड ब्लू का सेम कंटेंट रखा, वैल्यू रखा। ये देखो पर्पल हो गया। Okay, everyone, I hope you are getting clear, right? So this combination will work. Okay, so everyone, another example, एक लाइन का कोड, please write it down. The first one call attribute का नाम क्या लिखा हमने? What is the attribute name? Can someone shout what is the attribute name is? BG color. किसका एट्रीब्यूट है लेकिन ये? बॉडी टैग, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट। आप ऐसा लिखना, वो ए बी क्या है। एक मिनट, हाँ ये एग्जाम्पल गलत लिखा, थोड़ा अच्छा लिखेंगे ना तो D3। सो ये दोनों को एरो करके लिखना रेड, ये दोनों को एरो करके लिखना ग्रीन, एंड ये दोनों को एरो करके लिखना ब्लू। और ये ब्लू का अनदर ऑप्शन इज यू नो रेड और ग्रीन और एनीथिंग। ऑल राइट, सो लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज द सेकेंड एट्रीब्यूट? हम लोग को 2 या 3 एट्रीब्यूट्स याद रखना है।
second attribute here are text. When I say body के अंदर, where is body? अच्छा यहाँ से कट किया है. When I say body के अंदर BG color is something and text का color is something. So this will implement like this. Wow. So it can be any combination, right? So BG color is yellow. एकदम येलो के ऊपर रेड कॉम्बिनेशन. ये देखो. Right, everyone? So that is called text property. मैं उसको attributes बोलूं, मैं उसको property बोलूं, same है. Hold on. तो मैं इसके सामने लिखूं will used to display text in specific color. Example. Next is background. Background is basically used to display image. बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाएगी. नाउ ये इमेज को डिस्प्ले करना बहुत बड़ा मगजमारी वाला काम है. ऐसे कुछ नहीं मगजमारी, मतलब यू शुड बी टेकिंग केयर अबाउट दिस पाथ. ये पाथ ध्यान में रखना पड़ेगा. तो मैं अवॉइड करता हूं ऐसा पाथ को. सो मैं कोई भी पिक्चर्स को उठाता हूं. लेट्स अज्यूम दैट let's say this comrade. Have you seen any of you this movie called Comrade? हाँ Yes, sir. है ना. Who said that? Disha. Disha. Yeah, it's a good movie. I want everyone, you should watch this movie called Comrade. This is in the 12th आप appear कर रहे हो ना. So before your exam you must watch this movie as an entertainment as well as a learning a lesson. Okay. This is a South Indian movie. YouTube पे मिल जाएगा आपको. मैंने तो शायद कोई टीवी केबल पे देखा था, बट देन आई फाउंड कि वो यूट्यूब पे भी शायद है. इट इज अबाउट द रिलेशन, नॉट रिलेशन, द रोल ऑफ कोच. कोच नहीं बोल सकते शायद, फ्रेंड. जो आपको अभी राइट नाउ 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमरेड ना. तो मैं इसको कॉपी करता हूं. कोई भी इमेज ले लो ना, एनी हाउ कोई भी, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है. सेव्ड पिक्चर्स में ये वाला इमेज रहेगा शायद, स्टैंडर्ड इमेज नहीं है मेरे में, खाली है. नहीं तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिया रहता है. चलो ठीक है, ये इमेज ले लेते, क्या फर्क पड़ता है. कॉपी कॉपी कॉपी, यस, कॉपी, एंड आई विल पेस्ट इट इन माय फोल्डर. मेरा फोल्डर किधर है, ये रहा, 12th कंप्यूटर साइंस. और व्हाट इज द कंडीशन,
The condition says that file name test and that file must be in the same folder. Must be in the same folder. Comrade. उसका एक्सटेंशन इज png है. कैन यू सी हियर png? तो मैं देखता हूं यहां पे मुझे वो सपोर्ट करता है कि नहीं. comrade डॉट png. ओके, so let's see. ये देखो, अभी ये साइज छोटा था इसके लिए इतनी बार आ गया, अदरवाइज सिंगल टाइम आना चाहिए. लेट मी चेंज द साइज. कोई एक और पिक्चर ले लेता हूं मैं, बड़ा सा पिक्चर होना चाहिए कोई. लेट्स से ये वेबिनार का लेता हूं मैं. webinar.png. ये एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दैट. जेपीजी रहता है ज्यादातर. वेबिनार, रिफ्रेश. ये बड़ा इमेज था, देखो एवरीवन. एंड बड़ा इमेज की वजह से क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया. अगर इससे भी बड़ा होता था तो सिंगल में डिवाइड हो जाता था. आई होप यू अंडरस्टैंड. एवरी इमेज को कुछ साइज रहता है, राइट? एवरी इमेज को कुछ साइज रहता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. गुड. सो बीजी कलर के बाद बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड का एग्जाम्पल क्या हो गया? और यू नो कि ये मैं बैकग्राउंड ऐसा इमेज नहीं रखने वाला हूं. आई विल कीप अ इमेज सच अ वे दैट कि इट शुड बी रीडेबल कंटेंट. मेरा इमेज ऐसा रहेगा, राइट? सो प्लीज राइट डाउन नाउ द एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड. बैकग्राउंड क्या लिखूं मैं? यूज टू डिस्प्ले इमेज इन बैकग्राउंड. सर इसके लिए हेडिंग क्या देनी है? एट्रीब्यूट्स. मेरा एट्रीब्यूट्स ही टॉपिक चल रहा है. एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. पहला एट्रीब्यूट कौन सा किया हमने? बीजी कलर. दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा किया? टेक्स्ट. ये रहा टेक्स्ट, यहां से लिखना आप. और तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा किया? बैकग्राउंड. उसका एग्जाम्पल नीचे दिया मैंने. तो आपको यहां से इतना कॉपी करना है. सर ऊपर का नहीं करना, सॉरी, लाइक ऊपर जो आपने बोला था पहले Sorry. डिस्प्ले था, लाइक एज इन बिफोर दिस एक्सप्लेनेशन.
नहीं, I didn't get you. What are you saying? Sir, can you please scroll up? हाँ, sure. Sir, I'm asking about this beige color background. There are 16 color available with name tag. हाँ. Sir, वो कॉपी करना है कि नहीं. No need. Okay. This is I am explaining to you as my whiteboard मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझ के आपको I am explaining. So what you have to write is given in your exam. I mean TPS का बुक में भी दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिया है. You don't have to write this much. Attributes में 2 लाइन ही लिखना होता है. What is the purpose of that attribute? An example. That's it. ये रहा, देखो. अगर मैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं इतना ही लिखूंगा. That's it. Just a minute. તું શું કરી જાવ બેટા? તો અહીંયા આવી જા. મારો પતિ ગયું છે અડધો કલાકમાં. તું બહાર નહીં બેસતો. So I hope you have copied everyone and you know the output कैसा आएगा. If you want to draw the output, आप लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज द वन पेज और उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज विल बी डिस्प्लेड. मेरा पहला पॉडकास्ट कॉमराड के ऊपर था. कॉमरेड के ऊपर था. कॉमरेड बोल सकते, कॉमराड नहीं, कॉमरेड. बट देन फिर ना फोन फॉर्मेट हो गया, तो आई डोंट हैव दैट. आप लोग को भेजा था मैंने. आई मीन आई डोंट नो तभी 12th का बैच स्टार्ट हो गया था कि नहीं. दिस इज ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली. No, sir. नहीं भेजा. अच्छा, मैं देखता हूँ. इफ आई गेट इट बैक फ्रॉम माई वन ऑफ द फ्रेंड या किसी को भेजा रहेगा, उसी से मिलेगा तो आई विल सेंड यू. इट वॉज अ one podcast based on that Comrade movie, and I really want you people to, I mean, listen that. Okay, so let's move next. अभी क्या है HTML में, तो ऐसे ही आपको टैग एट्रीब्यूट सीखते जाना है एवरीवन. सो वृत्ति, मेरा अप्रोच आज ऐसा रहेगा कि मैं मैक्सिमम कराऊं आप लोगों को बाय कंसीडरिंग कि बीच में 1-2 मैंने टैग मिस कर दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप खुद से भी करोगे तो आपको समझ में आएगा. एंड वन फाइन डे वी विल अगेन लुक एट कि भी कुछ मिस किया है क्या. तो क्योंकि इसी के लिए मैं आपको लिखने की बोल रहा हूं, सो दैट यू कैन चेक बुक में लिखा है कि नहीं. ओके, आई गॉट दैट. सुनना, हाँ,
तो आपको अगर कोई भी टैग नहीं समझा ना, तो ऐसे एग्जाम्पल लेके समझना है ऑलवेज, ऐसे नहीं समझेगा वो लोग की लैंग्वेज। वही चीज आप रन करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो ऐसा एक ही पेज बना के रख देने का, उसी में माइनर चेंजेस करते रहने का। डू नॉट राइट योर प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। सो नाउ आई कैन सी देयर इज अ पी टैग। पी टैग का मतलब है पैराग्राफ टैग। अभी ये एट्रीब्यूट्स हो गया एवरीवन, एट्रीब्यूट्स इज डन। अभी मैं वापस टैग पे आ जाता हूं। सो वी सेड, ही सेड कि आई हैव अ पी टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। कोई भी टैग एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ एट्रीब्यूट्स भी होता है। सो आई हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड अलाइन, और उसकी वैल्यूज क्या है? जस्टिफाई समझेगा नहीं, बट बेसिकली वो लेफ्ट और राइट से जस्टिफाई करता है। तो दिस आर द 4 वैल्यूज अवेलेबल फॉर अलाइन। तो छोटा छोटा टैग है। यू डोंट हैव टू हैव ज्यादा कुछ क्लेम करने जैसा नहीं है उसमें। तो लेट मी चेक। सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड हटा दूं हमारा, तो डिस्टर्बिंग ना हो। एंड इसको मैं पी टैग बना दूं और उसको अलाइन दे दूं लेफ्ट। पी टैग को क्लोजिंग तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देता हूं। जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाइज एज यूजुअल लेफ्ट जैसा। ये टेक्स्ट इज जस्टिफाइड टू लेफ्ट एंड राइट, मार्जिन के साथ रहता है वो, बट मार्जिन कुछ ऐसा इम्पैक्टेबल दिखता नहीं है आपको ज्यादा। ओके, तो वो जस्टिफाइज ऑलवेज थोड़ा कंट्रावर्शियल वाला रहता है। सो हम लोग तो इतना याद रखेंगे, 4 वैल्यूज अवेलेबल है एवरीवन। पी एज अ पैराग्राफ टैग। एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो काफी है एवरीवन। सो हम लोग एक एक एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, एक साथ कॉपी करेंगे, ऐसा एक एक कॉपी नहीं करना है। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया। एंड नाउ आई वॉन्ट ऐसा हमारा एड्रेस कैसा रहता है? एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट में बिल्डिंग का नाम, फ्लैट नंबर एंड लेन, एरिया, सिटी, द नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द कंट्री एंड ऐसा। तो मैं अगर उसको यहां डिस्प्ले करूं, ये देखो सब कुछ एक ही लाइन में आ गया। सो देर इज अ वन टैग कॉल्ड BR। आपने लिखा है अलग अलग लाइन में, लेकिन उसको तो वो एक ही लाइन समझ रहा है। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, लाइन ब्रेक।
and let me try. Can you see that? Everyone, BR tag stands for break. वृत्ति याद है क्या 11th में कि फर्स्ट टाइम कर रही है अभी? नहीं सर, ये था है याद ना? है। हाँ, इजी है, बहुत इजी है. गुड. तो मैं उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं BR टैग का और अपने व्हाइट बोर्ड पे डाल देता हूं कि मेरा फर्स्ट टैग P था, पैराग्राफ टैग. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एग्जांपल ब्रेक टैग दैट्स कॉल्ड BR. आप ये दोनों कॉपी कर लो, 2 मिनट में मैं आया. एवरीवन, आप ये दोनों कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट में आया. Chalo, is it copied, everyone? Any doubt up till now? So we have done a one tag called BR, break tag, one called P, paragraph tag, we got body tag, 3 tag किया हम लोगों ने. Attributes की मैं counting नहीं कर रहा हूँ. We are learning tags. Excuse me sir. Yes. Sir, हमारे एग्जाम में like for other subject as in physics, chemistry, just said that it will be a MCQ test,
But they haven't mentioned if CS will be MCQ or not. So just can you give us some questions according to 12's perspective so we can just prepare on it? For Because which chapter you want? both like C++ and HTML. Like Miss C++. gave us things for C++ from the TPS book, but she hasn't given any for HTML. अच्छा ठीक है, HTML के लिए एक मिनट, मैं ये देख रहा था कि वो ऑनलाइन एग्जाम वाला इसमें मेरी बुक में है कि नहीं, दैट ऑप्शन। नहीं तो आपको इधर से ही बुक में ही मिलेगा आपको। डू यू हैव अ बुक HTML का? ये रहा सारा। यू हैव HTML का बुक, आई मीन TPS? हाँ सर है ना? तो पीछे बहुत सारे दिए हैं, अगर इफ यू ओपन ना। हाँ देखो, मैं अभी एक आपके सामने जस्ट रीड कर रहा हूं। समवन विल रिप्लाई मी फॉर द ग्रीन कलर, दिस इज आस्क्ड इन October 2012, फॉर द ग्रीन कलर RGB code is dash, RGB code is dash, and they gave a choice, hashtag। सुनना, ग्रीन कलर के लिए पूछा है, हैशटैग FF0000। दूसरा हैशटैग 00 देन 00 देन FF। तीसरा हैशटैग 00 FF00। बोलो, ग्रीन कलर के लिए हेक्साडेसिमल Third कोड option. या 0FF00. 00 FF00। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये बोर्ड में पूछा है। मैं तो हेक्साडेसिमल कराने के लिए आपको कराया, उसमें दिया है करके कि चलो करेंगे। सो दिस वे दे आस्क इन एग्जामिनेशन एवरीवन। सो आई वांट यू टू डू दैट। अगर आपको वृत्ति नहीं मिलता है तो मुझे बताना, मेरे को तो फोटो ही भेजना है। ओके सारे पीछे दिए हुए हैं 2009 हाँ, पेज नंबर मैं अभी जो आपके सामने रीड कर रहा था उसको पेज नंबर वो लोग ने Q49 दिया है, Q49 क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, Q1 से लेके सारे क्वेश्चन पेपर ही है। उसमें शुरुआत में प्रोग्राम दिया है, बट देन लेटर ऑन MCQs इन टर्म्स ऑफ, ये देखो 4.70 में मुझे दिख रहा है। ये देखो, अभी देखो मार्च 2003 एंड मार्च 17 में पूछा है, डैश टैग इज यूज टू पुट अ लाइन ब्रेक इन HTML। बोलो, मैं आंसर ही नहीं बोलता हूं, ऑप्शन ही नहीं देता हूं मैं आपको। डैश टैग इज यूज टू पुट अ लाइन ब्रेक। BR tag. BR tag, एब्सोल्युटली। An RGB code for the black color is dash. 00000000. Correct. 6 times. वृत्ति समझा तुझे? हाँ सर समझा। सारे मिल जाएंगे आपको। इट इज यू हैव टू डू, डेफिनेटली आपका हो जाएगा उसी में से। ओके चलो, लेट मी कंटिन्यू। PBR HR। HR क्या करता है? HR हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब लाइन ड्रॉ करता है, काफी टाइम पूछा है। सो लेट मी यूज HR। इट इज यूज्ड for horizontal rule tag, and it is also called as a horizontal line, and it has an attributes like color, size and width. Let me try HR। color, size and align।
चलो, सो उसका एक एग्जांपल देखते हैं HR टैग के साथ। 3 आ गया ना, उसके बाद मैं एक HR देता हूं। चलो, HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, साइज इक्वल टू समथिंग, width equal to something, and alignment equal to something. Can you see here? ये हॉरिजॉन्टल रूल आ गया। अलाइनमेंट राइट दिया है 60% ऑफ द पेज के। लेट मी गिव अ चेंज इन दैट एंड लेफ्ट देता हूं मैं, एंड अलाइनमेंट 60 की जगह 80% विड्थ का देता हूं, मतलब 80% ऑफ माय पेज विड्थ इज कवर्ड। ये देखो 80%। एक लाइन ड्रॉ करेगा, दैट्स इट। एग्जाम्पल, देर इज अ वन टैग जो उन्होंने पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग है, प्री प्री टैग, प्री। एज इट्स अ नेम सजेस्ट, प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कुछ पैटर्न ऐसी होती है जो आपको बनाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ टैग बहुत चैलेंजेस होते हैं, वो आप, और कुछ पैटर्न आपको ऐसे होते हैं जो आपको एज इट इज डिस्प्ले करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है विथ हेल्प ऑफ टैग्स। तो आप क्या करोगे? प्री ओपन और प्री क्लोज के बीच में यू विल राइट इट डाउन। सो प्री फॉर्मेटेड द टेक्स्ट, pre-formatted text. So let me try here. यहाँ पे ट्राई करो। प्री ओपन, प्री क्लोज, ओके। जस्ट अ मिनट है एवरीवन। हाँ से लगे, हाँ लेक्चर में बोलो ना। નીચે રાખો તમે, હું પછી હમણાં આવું કલાક 2 કલાક આરામથી ગમે ત્યારે. હા હા
सो कैसा अजीब सा पैटर्न मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखना जरा। इट्स अ पिरामिड बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं आया, व्हाई इट हैपेंड सो? 1 to 1 आया, 1 1 नहीं आया, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट। एक बार और चांस लेते हैं, समथिंग इज मिसिंग है क्या? एनी हाउ इसमें तो जो आप करोगे वैसा ही आना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, सर्टेन ब्राउजर्स डज नॉट सपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट व्हेन आई से सर्टेन ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट? मतलब yes, anyone? certain browser does not support मतलब नहीं आ रहा है इधर। एक मिनट ट्राई करूं मैं एक और ब्राउजर में, क्योंकि दिस इज ब्राउजर स्पेसिफिक भी होता है, कभी कभी एक ब्राउजर में आता है दूसरे में नहीं आता है। सो लेट मी ट्राई विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। कंट्रोल ओ इधर भी चलता है, सब ब्राउजर में कॉमन होता है। आई एम सेइंग कंट्रोल ओ। अच्छा ओपन का आ गया ये, ऑल्ट एफ। ऐसा कैसे नहीं आ रहा है? कंट्रोल ओ आया ना, कंट्रोल ओ, ब्राउज। आई वांट टू ओपन it will take a moment to open that। इधर भी ऐसा आ रहा है। एवरीवन आर यू लुकिंग एट द आउटपुट? समझा क्या आपको गलत आ रहा है करके, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इन दिस केस, आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट ये सब टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ गूगल करके भी, प्री टेक्स्ट, प्री टैग। तो मुझे हमेशा वो W3 स्कूल्स का पहला चॉइस देगा। देखो W3 स्कूल्स, हैव यू गॉन थ्रू W3 स्कूल्स कभी, एनी ऑफ यू? No, sir.
अच्छा, लिसन एवरीवन, W3 स्कूल इज अ वन प्लेटफॉर्म जहां पे वो लोग ने HTML का कोड दिया है एंड यू हैव अ बटन कॉल्ड ट्राई इट योरसेल्फ विच विल ओपन इन अनदर विंडो, जहां पे आपको नोटपैड की जगह इधर कोडिंग लिखना है और रन करोगे तो इसका आउटपुट बाजू में ही दिखा देगा. कैन यू सी दैट? मतलब अलग से ब्राउजर में ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो इधर का आउटपुट इधर ही दिखाया. अभी मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू ट्राई माई प्रोग्राम, तो मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं वो स्टाइल करता हूं जो मैं उधर ट्राई कर रहा था. ओके, और अभी मैं रन पे क्लिक करूंगा तो देखो बाजू में आ रहा है कि समथिंग ऐसा दिखेगा. मतलब ये इसमें कुछ तो है कि ये 2 लाइन आया, ये लाइन नहीं आया, ये इतना स्पेस दिखा रहा है. तो मैं वो स्पेस को थोड़ा डिलीट करके देखूं. कैन यू सी दैट? मैं कैसे भी करके लेके तो आ सकता हूं. हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को नहीं आ रहा था आउटपुट. देखो अभी मैं ऐसा करने से ऐसा आ रहा है, कैसे भी करके मैंने यूजर को तो दिखा दिया. देखो ये रहा आपका पिरामिड. सो ये रन का ऑप्शन से क्या होगा मुझे, आई डोंट हैव टू ओपन एनी नोटपैड, ब्राउजर, एनीथिंग. दिस वेबसाइट हेल्प्स यू टू लर्न द HTML का वॉट एवर टैग यू वॉन्ट टू. आई डोंट वॉन्ट कि आप वेबसाइट के अंदर जाके पूरा वेबसाइट पढ़ो, वो आपका काम नहीं है. दैट यू कैन डू इट इन द 12th वेकेशन एज अ जस्ट टाइम पास. मैं चाहता हूं आप अपना कोड इधर लिखो, सिंपल. मैं चाहता हूं यू डोंट वेस्ट योर टाइम and you just try here rather than writing into the notepad and running in the browser. यहाँ पे try करो ऐसा. But is this valid for final board exam? No. बोर्ड एग्जाम में आपको क्या चाहिए, तो you have to learn it from the notepad and browser. इसके लिए हमको वो भी आना चाहिए. So when you become an expert, आपको आता है notepad and everything, then rather than wasting your time to type the code, कम से कम इतना लिख के आ गया. Can you see that? HTML बॉडी ये वो लिख के आ गया. तो वो तो मैं नोटपैड में भी कर सकता हूँ ना बाबा. एक प्रोग्राम लिखा, अभी दूसरे प्रोग्राम में ये वापस लिखने नहीं बैठूंगा, इतना कॉपी पेस्ट कर लूंगा. so that it can be done, managed. Okay. So pre tag कहां पे लिखूं मैं? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. और मैं ऐसा क्यों एग्जाम्पल लूंगा? इजी एग्जाम्पल ले लूंगा ना, प्रॉब्लम ही नहीं. वो लोग ने कैसा एग्जाम्पल लिया था, खाली एक जगह 3-4 स्पेस दे दिया, एक जगह कुछ और स्पेस दे दिया, दैट्स इट, हो गया. ऑल राइट, माई लास्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल, लास्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल बाद में कॉपी करना. ये सब लोगों को आता है. अनुष्का को पूछते हैं, अनुष्का इंटीग्रेटेड. अनुष्का आता है तुझे? So bold, italic, underline. वेरी गुड. एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटेड. अच्छा, एक याद रखना, ये हेडिंग इट्स कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटेड. आप लोग को बताएंगे नहीं कि बोल्ड, आइटलिक एंड अंडरलाइन कम्स अंडर दिस कैटेगरी. दे मे आस्क विथ दिस टाइटल, व्हिच आर द टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग? Explain with example. So B is a bold tag. Whatever the text appear between B tag open and B tag
closed. That is end of the tag. Will be displayed in the bold later, everyone. तो what you suggest now, मैं आप लोग के सामने दोनों करके दिखाता हूँ. ये रहा आपके सामने. तो एड्रेस 1 को भी मैं आगे बी कर सकता हूँ. बी टैग, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ भी चलता है. बी टैग. And then I tag. साइकिल जाए हवा पुराई जाओ ना साइकिल सबको निकल जाएगा टीवी नहीं सामने बनवा बैठो रोजનું છે તો તમે શું ફરક કરો પણ એ અંદર આવા રેડી નહોતું એનો તો રેડી અંદર પેસવા રેડી નહીં આ રૂમમાં કે આ ભૂતવાના ટીવી ના તો ટીવી બંધ કરે છે નાવા જાય પપ્પા ચાલુ કરે और तो ना नहीं करे पप्पा પપ્પા पप्पा કે अंदर મમ્મી જોશે કેમ મમ્મી અંદર સમાઈ કરશે अंदर जो है पप्पा नहीं जो પણ પપ્પાને જોવું હોય ને કેમ તમે બોલે ના જો એટલે સમજવાનું હોય ને એ ટીવી સામે બેઠો એને સમજવાનું હોય ને હોલમાં તો જુએ ને હોલમાં તો રેસ્ટ્રિક્શન લાવો कहने તો પપ્પાને અંદર જાય અંદર બેસે ને કેમ चलो भाई. तो मैंने बी टैग अप्लाई किया, आई टैग अप्लाई किया एंड यू टैग अप्लाई करता हूँ एड्रेस 3 में. ये रहा एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एवरीवन. Address 1 is bold, address 2 is italic, address 3 is underlined. Can you see that? थोड़ा छोटा है but I hope it is visible. ये देखो मैंने बड़ा कर दिया. चलो, I hope it is visible now very clearly. Underline. So my question goes to Anushka. I want address 1 should be bold as well as italic. क्या करूँ अनुष्का? Sir, I'm guessing first you will put the bold tag, then italic, then you'll write the word Content. address 1, then you'll close the italic and close the bold. Okay, let me try. So it's closing of I as you said. This way only, right? Yeah. Okay, I'll save my program. I'll come here, I'll refresh. Address 1 should be bold and italic. Perfect. Everyone, I hope you are understanding. It's called nested. Bold के अंदर italic. And anyhow, order is not important. Italic के अंदर bold करो ना, क्या फर्क पड़ता है? But if you say bold के अंदर italic, then italic has to be closed first. I hope you understand that. उल्टा नहीं कर सकते आप कि close bold करें and फिर italic. Second thing, there is no hardcore rule that यहाँ output आया that means बाकी सारे browser में आया. Remember my word, being a good programmer, HTML never guarantee that the same output will come in all the browsers. You have to test personally test करना पड़ेगा. और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग मतलब मैं किन की बात कर रहा हूँ, ये लोगों की बात कर रहा हूँ, W3 स्कूल्स वाले लोग, तो वो शायद उसमें बता देते हैं. मैंने कोई एक टैग ओपन किया, कैन यू सी दैट नॉट सपोर्टेड इन HTML5 बड़े अक्षर में लिख दिया उन्होंने.
एंड देन आई विल से IMG टैग। आप लोगों ने अभी कौन सा टैग यूज किया? बी टैग यूज किया ना, बी टैग, ये रहा बी। हेलो एवरीवन, नीचे देखो क्या लिखा है वो लोग ने, ब्राउजर सपोर्ट, यस यस, मोजिला यस। ये मुझे पता नहीं कौन सा है, डू यू नो दैट ये कौन सा ब्राउजर है? सफारी है ये। एंड दिस वन इज ओपेरा, ये सुना है, यूज भी किया है, ये यूज नहीं किया मैंने सफारी कभी। सो दिस आर द, इतने को सपोर्ट करता है वो। सर सफारी iOS में आता है। करेक्ट। और प्री टैग, अगर मैं देखूं किसको सपोर्ट करता है किसको नहीं करता है अल्फाबेटिकली, प्री टैग ये देखो, उसमें नीचे लिखा रहेगा, ये भी सबको सपोर्ट कर रहा है। काफी टैग ऐसे होते हैं बाकी दो में कहीं पे नो लिखा रहेगा वो लोग ने। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बीइंग अ प्रोग्रामर, नॉट बीइंग अ 12th स्टूडेंट। इट इज ओके राइट नाउ, 12th स्टूडेंट के लिए इट इज फाइन। सो मैं क्या लिखूं बी के लिए? टेक्स्ट will be displayed as bold. Underline. चलो everyone please write it down, this one last. टैग्स बहुत हो गए आज, एंड देन वी हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में। मार्क्यू, मार्क्वी बोलते हैं, मार्क्यू बोलते हैं, LINOL से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में काफी कुछ हो जाएगा। HTML इज वेरी स्मॉल पार्ट। हेलो एवरीवन, मैं 4 लेक्चर लूंगा तो उसमें खत्म हो जाएगा, 3 लेक्चर में ही हो जाएगा, बहुत छोटा है। देन द थर्ड में ये आ जाएगा टेबल, हम लोग कर ही लेंगे अभी कंटिन्यूएशन में पूरा HTML कंप्लीट, 1 2 3 डन, इजी। एंड वी विल डू इट विद प्रैक्टिकल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल के साथ कर लेंगे, सो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एज वेल। You can run this in a mobile by opening a W3 school as well everyone, और लैपटॉप में भी W3 schools में रन कर सकते हो। डोंट फाइंड अ स्पेसिफिक टैग, कोई भी एग्जाम्पल ओपन करो, डिलीट करो, अपना एग्जाम्पल कॉपी करो, हो गया।
Done, everyone? Yes, sir. All right, everyone. Any doubt anyone wants to ask about this? Anything? Yes. So let me check here in a chat box. Do you have allowed of चेक बॉक्स में कोई फाइल वाइल अटैचमेंट अलाउड नहीं है ना? यहाँ पे फाइल अटैचमेंट अलाउड नहीं है. ठीक है, ठीक है. I got that. All right, then we'll see you in the next lecture and we'll continue Sunday on HTML. मनीष सर का लेक्चर क्या फिक्स हुआ है? मॉर्निंग 9 o'clock की 11 o'clock? 9. 9 o'clock. It's clear now. And in case anything is required, then it will be communicated. So by default, it is 9 o'clock. All right, great. अच्छा, ऋतुजा नहीं, ऋतुजा नहीं, वृति, यू वांट टू पास एनी मैसेज टू सर कि नेक्स्ट लेक्चर में वो ये टॉपिक कराए? मैंने सर से बात की थी. ही आस्क्ड फॉर हम लोग के प्रैक्टिकल्स के जो क्वेश्चंस है ना, हाँ, जो जैसे हम लोग को पीडीएफ फॉर्म में ही दिए है, तो उन्होंने बोला कि प्रज्ञेश सर को भेज देना ना, आस्क हिम टू फॉरवर्ड इट टू मी. सो आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ्स. हाँ, आप अश्लेषा को भेज देना, अश्लेषा को, सो दैट, हाँ, सो दैट वो अश्लेषा उसको भेज देगी सर को, या मुझे भी भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या ठीक है everyone, then we'll see you in the next lecture and we'll continue further HTML. Okay, you practice HTML. Anything you have a doubt, you can mark so that you can ask me in the next lecture. Chalo, bye and take care. Thank you, sir. Bye. All right, bye.